آئیے ہم کلام کی طرف رجوع کریں. میرے عزیزوں، کون کون کلام سننے آیا ہے؟ ابھی آپ میرا ساتھ دیجیے گا اور غور کیجیے گا. رومیو 10واں باب اور اس کی 17ویں آیت. رومیو 10واں باب اور اس کی 17ویں آیت. خداوند کے کلام میں لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا ہاللیلویا. ایمان سننے سے اور سننا مسیح کے کلام سے. مجھے بتایا گیا تھا بھائی شماون نے، میں شکر گزار ہوں ان کی اور پاسٹر صاحب کی، کہ ہماری کلیسیا بہت جوش والا کلام سننا پسند کرتی ہے. اور میں نے پہلی ہی آیت کھولی اور مجھے جواب ملا، اور واقعی آپ پرجوش اور جاگے ہوئے لوگ ہیں. خداوند کا شکر ہو. ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا خدا کے کلام سے. میرے عزیزوں، میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، ہر قوم، ہر قبیلہ، ہر فرقہ اپنے اپنے خداؤں پر ایمان رکھتا ہے. حتیٰ کہ جو شیطان ہے وہ بھی یہ ایمان رکھتا ہے کہ خدا کا وجود ہے اور وہ اس کائنات کا خالق اور مالک ہے. اور وہ یہ بھی ایمان رکھتا ہے کہ خدا کے اختیار میں سب کچھ ہے. لیکن ہمارا ایمان، مسیحیوں کا ایمان کسی قوم کی طرح کا نہیں ہے، کسی قبیلے کی طرح کا نہیں ہے اور کسی بھی فرقے کی طرح کا نہیں ہے. ہمارا ایمان لا مبدل، لا ثانی، نہ تبدیل ہونے والا اور ایک بہت ہی منفرد ایمان ہے. ہمارا ایمان ایسا ایمان ہے کہ بڑے سے بڑے درخت اکھڑ کر سمندر میں جا گرتے ہیں. ہمارا ایمان ایسا ایمان ہے کہ وہ عجیب عجیب کام ہوتے ہیں. ہمارا ایمان ایسا ایمان ہے کہ یہ بڑی سے بڑی رکاوٹ کو دور کر دیتا ہے. ہمارا ایمان ایسا ایمان ہے کہ یہ ہمیں پانیوں پر چلنا سکھاتا ہے. ہمارا ایمان ایسا ایمان ہے کہ بڑے سے بڑے طوفان تھم جاتے ہیں. ہمارا ایمان ایسا ایمان ہے کہ آگ کی جلتی ہوئی دھرتی میں ہمیں زور نہیں پہنچتا. ہمارا ایمان ایسا ایمان ہے کہ شیروں کے منہ بند ہو جاتے ہیں. ہمارا ایمان ایسا ایمان ہے کہ اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے، لنگڑوں کو چلاتا ہے، بدرو گرفتہ کو آزاد کرتا ہے، کوڑیوں کو پاک صاف کر دیتا ہے اور مردوں کو زندہ کر دیتا ہے. ہمارا ایمان کسی بھی انسان کے اوپر نہیں. ہمارا ایمان کسی بھی پتھر کی بنائی ہوئی مورت کے اوپر نہیں ہے. ہمارا ایمان کسی بھی کاغذ کے تویز کے اوپر نہیں ہے. ہمارا ایمان کسی بھی ایسے ولی کے اوپر نہیں ہے جو قبر میں بند ہے. ہمارا ایمان کسی بھی جادوئی لائٹ کے اوپر نہیں ہے. کسی بھی ایسی جادوئی لائٹ ہے جس کے اوپر ہمارا کوئی نگ کے اوپر، نگوں کے اوپر ایمان نہیں ہے. ہمارا ایمان کسی دنیا کے بادشاہ کے اوپر نہیں ہے. ہمارا ایمان خدا تعالیٰ کے زندہ بیٹے خداوند یسوع مسیح کے اوپر ہے، جس نے میری خاطر، جس نے آپ کی خاطر صلیب پر جان دی، ہوا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے.
फलाह की कुंजियां हैं। हमारा ईमान उस खुदा के ऊपर है जो खुदावंदों का खुदा है, जो बादशाहों का बादशाह है, जो शहनशाहों का शहनशाह है, जो जलाल का बादशाह है, जो इस्राएल का बादशाह है, जो यहूदियों का बादशाह है, जो जलाल की उम्मीद है, और जो मेरा खालिक, आपका खालिक और मालिक है, जो आपका बचाने वाला है, आपका छुड़ाने वाला है। हमारा ईमान उसके ऊपर है, उस औरत का ईमान जिसको कई वर्ष से कर्ज ने घेर रखा था, जो एक बहुत ही खतरनाक मर्ज में 12 साल से गिर चुकी थी। उसका ईमान खुदा कादर बचाने वाले के ऊपर था। जब उसने सुना कि उसकी उम्मीद की किरण यहाँ पर आ चुकी है, तो वो औरत आई, वो उसको ढूंढने लगी, क्योंकि उसने सुन रखा था कि एक शाफी आया है, एक नजात देने वाला आया है, एक फिदिया देने वाला आया है, एक बचाने वाला आया है, एक छुड़ाने वाला आया है। मैं उसके पास जाऊंगी और मैं अच्छी हो जाऊंगी। मेरे अजीजों, उस औरत ने जिसके बराबर से खून जारी था, मरकज 5वां बाब और उसकी 25वीं आयत में आप इस वाक्य को पढ़ सकते हैं। मेरे अजीजों, वो औरत इस बीमारी की वजह से मुकम्मल तौर पर लागर हो चुकी थी, कमजोर पड़ चुकी थी। 12 साल का अरसा एक बहुत ही लंबा अरसा होता है, और वो इस बीमारी के बायस बहुत ही ज्यादा गमगीन हो चुकी थी। उसकी रूह में गमगीनी थी, उसकी रूह, जहन, दिल नाखुश थे, उसका जहन मुसलसल टेंशन से गुजरता था। हर रोज हर वक्त वो इस बीमारी के साथ जंग कर रही थी, और वो बिल्कुल बेबस हो चुकी थी। लेकिन जब उसके पास खुशखबरी पहुंची, एक बचाने वाला, एक शाफी, एक अच्छा तबीब यहाँ पर आ गया है, बादशाह का बादशाह यहाँ पर आ गया है, तो वो उसको ढूंढने के लिए चल पड़ी। और भीड़ में उसने देखा कि वो जा रही है, और वो खुदा की बेटी जो के बेबस थी, वो बेबस थी। उसने बहुत सारे डॉक्टरों से इलाज करवा लिया, लेकिन उसको शिफा न हुई। वो बेबस, जब उसने देखा कि जलाल की उम्मीद, जिंदगी का सर चश्मा, जिंदगी देने वाला, डॉक्टरों का डॉक्टर, अच्छा तबीब, रहीम, अजीब मशीन, खुदा कादर, सलामती का शहजादा, सुबह का सितारा, जो थके मांदों को आराम देता है। क्या देता है? आराम देता है। वो आ चुका है, जिसको वो अपना शाफी मानती थी। वो बड़ी ही जरूरत करती है, और इस कमजोर जिस्म के बाइस, हत्ता कि वो कुंबड़ी हो चुकी है, वो कुंबड़ी हो चुकी है, और उसकी टांगों में जान नहीं है, और उसके हाथों में जान नहीं है, उसके जिस्म में से हर तरह की ताकत निकल चुकी है, और वो कमजोर और लागर हो चुकी है, और वो अपने शाफी के पास पहुंचने के लिए जद्दोजहद करती है, क्योंकि उसके अंदर कामिल ईमान था, और उसका ईमान खुदावंदों के खुदा के ऊपर था। अब वो अपने खुदा के पास, बादशाह के पास जाने के लिए उस बहुत बड़ी भीड़ से गुजरती है। उससे चला भी नहीं जा रहा, उससे चला भी नहीं जा रहा। वो धक्के खाती है, वो तकलीफ सहती है, उसके हो सकते जख्म आ चुके हों, वो
बोली है। उसने कहा मैं चुपके से जाऊंगी और उसकी पोशाक का एक पल्लू भी छू लूंगी, सिर्फ हाथ ही लगा लूंगी तो मैं शिफा याब हो जाऊंगी। मेरे अजीजों, अब औरत, बीमार औरत, कमजोर औरत, बेबस औरत बड़ी ही मुश्किल के साथ एक भीड़ में से गुजरती है, रास्ते को तलाश करते हुए, धक्के खाते हुए वो गुजर कर जब पहुंचती है तो वो यीशु मसीह मेरे और आपके आका, मेरे और आपके मालिक, मेरे और आपके खुदा जो कि जिंदा खुदा है, उसके पल्ले को हाथ लगाती है और हिस्ट्री बताती है कि यीशु मसीह ने उस वक्त जो लिबास पहन रखा था, उसके एक चोगा पहन रखा था और उसके नीचे एक ऐसा ड्रेस था जो कि यहूदियों के कल्चर के मुताबिक तालीम उसको कहा जाता है। और उस ड्रेस के नीचे लड़ियों के साथ जो धागे होते हैं, धागों के साथ घिरा बांधी होती थी और उस घिरा के अंदर खुदा का कलाम लिखा होता था। और वो तालीम जो कोई भी खादिम उस दौर में पहनता था वो मसा से भर जाता था, वो रूह की आग से भर जाता था। और इसका मतलब होता था कि वो खुदा की मसा में है, खुदा की हजूरी में है और खुदा की हिफाजत में है। सो मेरे अजीजों, उस वक्त जब औरत ने यीशु मसीह का पल्ला छुआ है, यीशु मसीह ने उस वक्त ये यहूदियों के कल्चर के मुताबिक ड्रेस पहन रखा था और वो जाती है और चुपके से उस ड्रेस की जो एक धागा होता है, उस लिबास में एक धागा होता है, उसको छूती है और कायनात का खालिक और मालिक, बादशाहों का बादशाह रुक जाता है। वो रुक गया, इस कायनात का खालिक और मालिक रुक गया। यहोवा एलोहीम रुक गया, यहोवा यारी रुक गया, यहोवा शामे रुक गया है, यहोवा एदनाए रुक गया है, एल शदाई रुक गया है। और उसने कहा कि मेरी पोशाक को किसने छुआ है? उसने कहा मेरी पोशाक को किसने छुआ है? मेरे अंदर से कुव्वत निकली है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, औरत ने यीशु मसीह के जिस्म को टच नहीं किया, हाथ नहीं लगाया। उसने ना ऊपर से हाथ लगाया, ना कमर से, ना पांव का हाथ लगाया, सिर्फ और सिर्फ उसने यीशु मसीह की पोशाक के धागे को छुआ है और यीशु मसीह रुक गया है। और यीशु मसीह कहता है कि किसने मुझे छुआ है, क्योंकि मेरे अंदर से कुव्वत निकली है। छूना क्या है? छूना क्या है? क्या छूने से हमें शिफा हो जाती है? बाइबल मुकद्दस में बहुत सारे लोगों को शिफा हुई और हर एक का ईमान फर्क हमें मिलता है। लेकिन मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस औरत का ईमान सबसे ज्यादा फर्क मजबूत ईमान था। उसने दिल में ठान लिया कि मैं कुछ नहीं बोलूंगी, वो पुकारी नहीं, वो चिल्लाई नहीं। उसने चुपके से मुस्बत इरादा करके उसने ये कहा कि मैं सिर्फ उसके पल्ले को ही छू लूंगी और मैं शिफा पा जाऊंगी। वो डरती थी कि कहीं यीशु मसीह मेरी बीमारी के सामने लोगों के आगे पूछे ना कि तू क्या चाहती है। इस वजह से उसने अपने ईमान को इस कदर
छू लूं। सो मेरे अजीजों, क्योंकि बीमारी के बायस वो लागर हो चुकी थी, उसने खड़े होकर उसको नहीं छुआ। वो खुदा के पास जाती है और झुककर उसके पल्ले के धागे को हाथ लगाती है और छू लेती है, और जो कुव्वत यीशु मसीह से निकलती है वो कुव्वत उस औरत के अंदर जाती है। और जब यीशु मसीह कहता है कि किसने मुझे छुआ है, उस औरत को, उस बंदे को मेरे सामने लेकर आओ, सो वो उठ खड़ी होती है और कहती है कि खुदावंद, मैंने तेरे पल्ले को छुआ है, जो कुव्वत तुझ में से निकली है वो कुव्वत मेरे अंदर आ गई है, और देख मैं खड़ी हो गई हूँ और मजबूत तख्तों के ऊपर खड़ी हूँ, और मैं आज ताकत में हूँ, और मेरा जिस्म ताकत पा चुका है, मेरा जिस्म ताकत पा चुका है। मैं अब लागर नहीं रही हूँ, मैं अब बेबस नहीं रही हूँ, मैं कमजोर नहीं रही हूँ। जिस वक्त मैंने तेरे पल्ले को छुआ, उसी वक्त में शिफा पा गई, और तेरी कुदरत जो मेरे अंदर आई उसने मुझे शिफा दी और उसने मुझे उठा खड़ा कर दिया है। उसका ईमान ऐसा ईमान था, उसने कहा कि खुदा देख, मैं बड़ी मुश्किलें सहती हूँ, बड़ी तकलीफें सहती हुई तेरे पास आई, और मेरा जिस्म मुकम्मल तौर पर मुर्दा हो चुका था और मुझ में ताकत नहीं रही थी, लेकिन अब मैं ताकतवर हो चुकी हूँ। और वो बड़ी ही जरूरत के साथ कहती है, इलानिया तौर पर कहती है, और अपनी बीमारी का इजहार करती है, और सारी भीड़ के आगे वो ऐलान करती है और गवाही देती है कि मैंने शिफा पा ली है, मैंने शिफा पा ली है, मैंने शिफा पा ली है। मेरे अजीजों, शिफा, ईमान, शिफा तीन तरह की हमें बाइबल मुकद्दस में नजर आती है। जिस्मानी शिफा, रूहानी शिफा, और बदरू गिरफ्ता से आजादी की शिफा। लेकिन इन तीनों शिफाओं को लेने के लिए हमें एक चीज की जरूरत है, और वो है ईमान। ईमान जो है वो अनदेखी चीजों का सबूत है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि यहाँ मेरे साथ एक बहुत बड़ा शेर खड़ा है, तो आप मान जाएंगे, आप कहेंगे हमें तो नजर नहीं आ रहा। हम कैसे मानेंगे यहाँ पर शेर खड़ा है? अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर गाड़ी खड़ी है, तो आप लोग नहीं मानेंगे क्योंकि आपको नजर नहीं आ रहा। लेकिन ईमान एक ऐसी चीज है जिसको हम देखे बगैर कबूल करते हैं और मानते हैं कि यस, मेरा ईमान है कि खुदा मुझे शिफा देगा, खुदा मुझे रहाई देगा, और रहाई दे रहा है और शिफा दे रहा है। सो मेरे अजीजों, बदरूहों की गिरफ्त से शिफा हम बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं कि एक औरत यीशु के पास आई है और वो कहती है, मत्ती की अंजील उसका 15वां बाब और उसकी 21वीं आयत में ये वाक्य हमें मिलता है। फिर यीशु वहां से निकलकर सूर और सीधा के इलाके को रवाना हुआ, और देखो एक कनानी औरत उन सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी, ऐ खुदावंद इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर, एक बदरू मेरी बेटी को बहुत सताती है। मगर उसने
जवाब ना दिया और उसके शागिर्दों ने पास आकर उससे ये अर्ज की कि उसे रुखसत कर दे क्योंकि वो हमारे पीछे चलाती है। उसने जवाब में कहा कि मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। मगर उसने आकर उसे सजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद मेरी मदद कर। उसने जवाब में कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। उसने कहा, हाँ खुदावंद, क्योंकि कुत्ते भी इन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मार्गों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, ऐ औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा पाई। मेरी अजीज बहनों और मेरे अजीज भाइयों, यहाँ पर हम देखते हैं कि एक गैर कौम की औरत यीशु मसीह के पास चलाती हुई रोती हुई आती है कि ऐ खुदावंदों के खुदा, ऐ दाऊद, मुझ पर रहम कर क्योंकि मेरी बेटी बदरू गिरफ्तार है। यीशु मसीह ने बाइबल मुकद्दस में बहुत सारे बदरू गिरफ्तार लोगों को आजाद किया है। आप देख सकते हैं कि जब हम अनाजील का मुताला करते हैं तो बहुत सारे लोग जो बदरू गिरफ्तार थे, खुदावंद यीशु मसीह ने उनको बहाल किया है, आजाद किया है और शिफा बख्शी है। इब्लीस जो शैतान है वो कभी तो हमारे जिस्मों पर तकलीफ देकर हमें परेशान करता है और खुदा से दूर करता है, और कभी वो अपने परिंदों को भेजता है, अपनी तस्वीरों को हमारे बदनों के अंदर भेजता है और हमें परेशान करता है। अब ये औरत गैर कौम की औरत है और उसके पास कोई हल नहीं क्योंकि उसकी बेटी बदरू की वजह से सताई जा रही है और उसकी बेटी मुकम्मल तौर पर तकलीफ में है और उसकी बेटी के अंदर एक जंग जारी है। वो मर भी सकती है और वो औरत रोती हुई चिल्लाती हुई यीशु मसीह के पास आती है और कहती है कि ऐ खुदा, तू मेरी बेटी को शिफा दे सकता है, तू उसके लिए दुआ कर और वो शिफा पाए। तो कहती, खुदावंद इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर, मुझ पर रहम कर, एक बदरू मेरी बेटी को बहुत सताती है। और यीशु मसीह कहता है कि खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। ठीक है, यीशु मसीह कहता है तू गैर कौम की है, मगर वो गैर कौम की औरत खुदावंदों के खुदा, हमारे जिंदा खुदा को आकर सजदा करती है और कहती है, खुदावंद मेरी मदद कर। और उसका ईमान इस कदर ज्यादा है, इस कदर मजबूत ईमान है कि वो कहती है कि जिन मार्गों की मेज से कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मार्गों की मेज से गिरते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह उस गैर कौम की औरत के ईमान को देखता है कि किस कदर उसका ईमान बड़ा है। और खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है, जा, तेरी बेटी ठीक हो गई है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी शिफा पा जाती है। मेरे अजीजों, आज इंसान 3 तरह के मुश्किलात में घिरा हुआ है। एक मुश्किल उसके जिस्म को बीमारियां लगती हैं। दूसरी मुश्किल ये है कि इब्लीस अपनी बदरूहों को, अपनी परिंदों को बेचता है और लोगों के अंदर ट्रांसफर करता है और बेच देता है और उनको वो बदरूहें सुताना शुरू कर देती है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जो मेरा और आपका खुदा है, जो बचाने वाला खुदा
अजीजों, तीसरी बात, वो रूहानी तौर पर हमें शिफा देता है। रूहानी तौर पर वो हमें शिफा देता है। जिस्म, ये जो जिस्म है, इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां आ सकती हैं। जिस्म के ऊपर कोड़ आ सकता है और एक टाइम आएगा कि इंसान अगर बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है, टाइम आता है वो मर जाता है और कब्र में चला जाता है। इसी तरह रूहानी तौर पर हमारे रूह के अंदर बहुत ज्यादा गलतियां हैं, बहुत ज्यादा गुनाह पाए जाते हैं और रूहानी तौर पर बाज़ दफा इंसान की ऐसी हालत होती है जिस तरह एक कौड़ी की हालत होती है जिस्मानी तौर पर। रूहानी तौर पर उसकी रूह के अंदर इस कदर आलूदगी पाई जाती है मुख्तलिफ गुनाहों की वजह से, इस तरह के वो बीमारी के फोड़े, गुनाह के फोड़े होते हैं। जिस तरह बीमारी के फोड़े होते हैं, वो रूह के ऊपर गुनाह के मुख्तलिफ किस्म के गुनाह के फोड़े होते हैं। जिस तरह के झूठ का गुनाह, झूठ, लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, कुफर के, बिदअते, घमंड, गुरूर, ज़नाकारी, नशाबाजी, जादूगरी, इस तरह के फोड़े, इस तरह की तौर से बाज़ दफा इंसान की रूह बीमार पड़ चुकी होती है। मेरे अजीजों, इसी तरह हम एक और औरत का वाक़या, एक और औरत का वाक़या बाइबल मुक़द्दस में देखते हैं कि मेरा और आपका आका गुनाहों को भी माफ करने की कुदरत रखता है। एक औरत ने जिस्मानी तौर पर शिफा पाई है। अभी हमने देखा कि एक औरत ने जिस्मानी तौर पर शिफा पाई है और एक औरत ने बदरू गिरफ्ता थी, जो उसने बदरूहों से रहाई पाई है। और अब तीसरी औरत हम देखते हैं कि वो रूहानी तौर पर शिफा पाती है। यूहन्ना और उसका 11वां बाब और 60वां बाब और उसकी पहली आयत से 11वीं आयत तक ये वाक़या हम बाइबल मुक़द्दस में से पढ़ सकते हैं। वो औरत जो इस वाक़या में बयान किया गया है वो सब जानते हैं और मुख्तलिफ फातमीन के जरिया से हम सीखते आए हैं। अभी पास्टर साहब ने भी उसी औरत की मिसाल दी। वो औरत ज़ना में ऐन फेर के मुताबिक पकड़ी गई है और उस वक्त तो कानून ये था कि अगर कोई औरत नाजायज ताल्लुकात पैदा करते हुए पकड़ी जाएगी तो उसको संसार कर दिया जाएगा, उसको मार दिया जाएगा, उसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। और बहुत सारे लोग उसके ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं और बहुत सारे लोग उस पर इल्जाम तराशी कर रहे हैं क्योंकि वो यीशु को आजमाना चाहते हैं और यीशु के सामने उस औरत को लाकर कहते हैं कि ये ऐन फेर के मुताबिक ज़ना में पकड़ी गई है। खुदावंद यीशु मसीह उन लोगों को ये जवाब देता है कि अगर तुम में से कौन बेगुनाह है, कोई बेगुनाह है तो इसमें से गुनाह को साबित करे। हर इंसान होते हुए कोई न कोई गलती और खता करता रहता है। कोई भी इंसान कामिल नहीं है। हर इंसान के अंदर कोई न कोई कमजोरी है। किसी और किस्म के गुनाह ने घेर रखा है तो दूसरे इंसान को किसी और किस्म के गुनाह ने घेर रखा है। मेरे अजीजों, यीशु ने जब देखा
تھے وہاں سے. یسوع مسیح زمین پر لکھ رہا تھا، لیکن وہ لوگ اس میں سے جب انہوں نے اپنے آپ پر غور کیا تو وہ اس عورت میں سے گناہ کو ثابت نہ کر سکے اور اس جگہ سے چلے گئے. میرے عزیزوں، یسوع نے اس عورت سے کہا کہ میں تجھ پر کوئی حکم نہیں لگاتا، جا پھر گناہ نہ کرنا، جا پھر گناہ نہ کرنا. یسوع نے اس سے کہا جا پھر گناہ نہ کرنا. میرے عزیزوں، میرے آقا خداوند یسوع مسیح جو خدا تعالیٰ کا بیٹا ہے، جو کچھ وہ کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جو یہوہ یری ہے، جو قادر مطلق ہے، جس نے میرے لیے اور آپ کے لیے جان دی ہے اور جس کو ایسا نام بخشا گیا ہے جو کسی کو نہیں بخشا گیا. یسوع مسیح اس عورت کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. وہ نہ صرف جسمانی طور پر شفا بخشتا ہے بلکہ وہ گناہوں کو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے. میرے عزیزوں، ہمارا ایمان عمل کے ساتھ ہونا چاہیے. ایمان عمل کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے. یعقوب کے خط میں لکھا ہے اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ عمل نہ ہو تو اپنی ذات سے مردہ ہے. کیا ہے؟ میرے ساتھ نہیں ہے، کیا ہے؟ مردہ ہے. ایمان اگر آپ کے اندر ہے تو آپ کے عمل بھی نظر آنے چاہیے، آپ کے اعمال بھی نظر آنے چاہیے. اگر آپ کہتے ہیں کہ میں زندہ خدا کی پرستش کرتا ہوں تو پھر خود بھی روحانی طور پر زندہ ہونے کی ضرورت ہے. اگر آپ اس کلام کو پڑھتے ہیں اور اس کلام کی اس آیت کو مانتے ہیں کہ اپنے پورے دل، اپنی پوری جان اور اپنے پوری بدن سے اپنے خدا سے محبت رکھ، تو کیا آج آپ ایسا کر رہے ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں اس خدا پر ایمان رکھتا ہوں جو کہ پاک اور صاف ہے، تو کیا اس پاک اور صاف خدا کے بچے اور بچیاں ہوتے ہوئے، بیٹے اور بیٹیاں ہوتے ہوئے آپ پاکیزگی میں ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں اس وفادار خدا کی پرستش کرتا ہوں اور میرا ایمان اس وفادار خدا کے اوپر ہے، تو کیا آپ خدا کے ساتھ وفادار ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ میرا ایمان اس خدا کے اوپر ہے جو رحیم ہے، تو کیا آپ کے اندر رحم ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ میرا ایمان اس صادق خدا کے اوپر ہے، تو کیا آپ کے اندر سچائی پائی جاتی ہے؟ کیا کہیں آپ جھوٹ تو نہیں بولتے؟ کیا آپ چوری تو نہیں کرتے؟ ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے. اگر آپ صرف کہہ کر ایمان لاتے ہیں تو آپ کا ایمان مردہ ہے، لیکن اگر آپ ایمان کے ساتھ اس کو پریکٹیکلی طور پر بھی کرتے ہیں تو آپ کے اندر زندہ اور مضبوط ایمان ہے جس کی خدا کو ضرورت ہے. میرے عزیزوں، آج بہت سارے لوگ شفایہ عبادات میں جانا بہت پسند کرتے ہیں، کیونکہ آج کے دور میں اسپیشلی پاکستان میں
اگر دیکھا جائے تو خوراک اس قسم کی ہے کہ انسان خوراک کھاتا ہے تو اسی خوراک کی وجہ سے بے شمار بیماریاں ہمارے جسموں کو گھیر لیتی ہیں. اب انسان جسمانی طور پر چاہے وہ کوئی چھوٹا ہے, چاہے کوئی بڑا ہے, چاہے بوڑھا ہے, کسی نہ کسی بیماری کمزوری میں مبتلا ہے. اور اگر کسی کو کوئی بیماری نہیں ہے تو اس میں خون کی کمی ہوگی. ایسا ہی ہے. انسان چاہتا ہے کہ اس دنیا میں صحت مندی کے ساتھ زندگی بسر کروں, میں بہت ہی خوشی کے ساتھ زندگی بسر کروں, اور میں بہت ہی آرام کے ساتھ زندگی, سکون کے ساتھ زندگی بسر کروں. اور جب کبھی مسیحی لوگ یہ سنتے ہیں کہ یہاں پر شفایہ عبادت ہو رہی ہے اور اس خادم کو خدا نے شفایہ نعمت دے رکھی ہے, تو کچا کچ چرچز بڑھ رہے ہوتے ہیں, اسٹیڈیمز بڑھ رہے ہوتے ہیں, بہت سارے بڑے بڑے میدان بڑھ رہے ہوتے ہیں کہ آج میرا بیٹا میری بیٹی بیمار ہے تو میں جانا چاہتا ہوں, میں جانا چاہتی ہوں تاکہ میں شفا پاؤں, میرے بچے شفا پائیں. کیا کبھی ہم روحانی طور پر, جو کہ ہماری روح بیمار ہو چکی ہوتی ہے, جب ہماری روح کے اوپر بے شمار گناہ نے قبضہ کر رکھا ہوتا ہے, جب ہمارے اندر مختلف قسم کے گناہوں کی وجہ سے ہماری روح بیمار ہو چکی ہوتی ہے, ہم آتے ہیں کہ آج میں نے پاک روح سے اپنے گناہوں کو پاک اور صاف کرنا ہے. آج کون کون شفا لینے آیا ہے, اور آج کون کون روحانی برکت لینے آیا ہے, کون کون چاہتا ہے کہ آج پاک روح سے میں مبرور ہو کر جاؤں اور اپنے گناہ جتنے بھی ہیں, چاہے وہ کوئی چھوٹی سی غلطی کیوں نہیں ہے, خدا مجھے پاک اور صاف کر دے. آج یقیناً ضرورت ہے کہ ہم اپنی روحانی شفا کی زیادہ فکر کریں. یہ جسم فانی ہے, اس جسم نے مٹی میں مل جانا ہے. بے شک خداوند یسوع مسیح نے جسمانی طور پر بھی معجزات کیے ہیں, لیکن جب آپ روحانی طور پر صحت مند ہوں گے تو آپ کو جسمانی تکلیف کی پرواہ نہیں رہے گی, اور آپ کا جسم خود بخود ہی صحت مندی پکڑ لے گا. پہلے ضرورت ہے کہ ہم روحانی شفا کو مانگیں. جس یہاں رہ جانا ہے اور ہماری روح نے آسمان میں چلے جانا ہے, اور آسمان میں ہمیشہ کی زندگی ہے, ہمیشہ کی زندگی ہے جو کہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. لیکن جسم جو ہے اس دنیا کا ہے, اور یہ دنیا عارضی ہے جو کہ کچھ ہی سالوں بعد ختم ہونے والی ہے. یہاں پر زیادہ تر لوگ مجھے 40+ نظر آ رہے ہیں, آپ کے پاس زیادہ تر 20 یا 30 سال اور ہیں, لیکن آگے اگر جب آپ خداوند یسوع مسیح میں سوئیں گے تو وہ زندگی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. اسی لیے میرا آج آپ کو پیغام ہے کہ اپنی روح کو بچائیے تاکہ آپ ہمیشہ کی زندگی کو پالیں. اگر آپ صرف اور صرف اپنے جسم کی پرواہ کرتے رہے اور روح کو اگنور کرتے رہے تو میں آپ کو خبردار کرنا چاہتی ہوں کہ آپ آگ اور گندم کی چیل میں آپ کا یہی جسم ہمیشہ کے لیے جلتا رہے گا. میرے عزیزوں, آج ہمیں اپنے بے شمار گناہوں کو ترک کرنے کی ضرورت ہے. آج اس شافی کے پاس آئیے جو مکمل طور پر ہمیں ایک مکمل پیکج دیتا ہے, جو ہمیں بیماریوں سے بھی شفا دیتا ہے, جو بدروحوں سے بھی ہمیں چھڑاتا ہے, اور جو گناہوں سے بھی ہمیں پاک اور صاف کر دیتا ہے. آج ہمیں گناہوں سے پاک اور صاف ہونے کے لیے شفا کو مانگنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس کے پاس ہمیشہ کی شفا ہے. اس قدوس کے پاس, اس عہد کے صندوق کے پاس, اس الفا اور اومیگا کے پاس, ابتدا اور انتہا کے پاس, زندگی کے پانی کے پاس, زندگی کے نور کے پاس, خدا کی روٹی کے پاس, صبح کے
के कदमों पर खड़े हो जाएंगे। हालेलुया।